Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll wait for 1 minute or so. Okay, so let's get started. Okay. Yes, sir. Okay, so we discussed the basic concept of gravitation. Good afternoon, sir. Good afternoon. We discussed the basic concept of gravitation. We also discussed that it is not something special about Earth. Any two bodies that have mass attract with gravitational force. We, based on the experiments that Newton did and what formula he found, we also reached that formula, which is F is equal to capital G m1 into m2 by d square. Okay, and then we also try to understand what this constant of proportionality is. There are certain important things that it has units, which is Newton meter square, kg per meter square. You don't have to remember these units, as in you don't have to mug it up, लेकिन इनको कैसे निकालना है, ठीक है, वो अगर आपको आता है तो ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और जी की लेकिन वैल्यू याद रखिए, ठीक है, जो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 है, क्वेश्चंस में यूजुअली गिवन होगी, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया टू रिमेंबर, ठीक है। और ये वैल्यू देख के हमें पता चलता है कि जी बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसलिए जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ओनली इन even which are way Good morning, sir. good morning, good afternoon. So which Sir, way good afternoon, sir. which way even, let's say 1,000 kilograms or 2,000 kilograms, उनके बीच में, and even if they are just a meter apart, the value of force that we will calculate would be very small, and hence we usually do not see that, right? We usually do not end up experiencing this force other than from Earth. Okay, then we said that, you know, what happens when we are very, very close to the Earth's surface. Okay, we actually assume the height of the object from Earth to be negligible compared to the radius of the Earth, and from that we calculated to get the value of acceleration due to gravity, which is a small g, okay, represented by a small g universally, right? So we should see that, and its value is roughly around 9.8 meter per second square. And जायगर बेटा, आप अपना वीडियो बंद रख सकते हो अगर चाहो, क्योंकि उससे स्लो हो जाता है सबके लिए, ठीक है। हाँ, तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं आप, ठीक है। यहाँ तक का ये रिकैप था। अब is g truly a constant was a question we left yesterday,
no, the value of g is not really a constant. Okay, it is approximated to be a constant near the surface of the earth. तो कहाँ कहाँ पे g में वेरिएशंस आते हैं? सबसे पहली बात ये है कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है. ओके, we have studied that it is shaped more like an orange rather than like a ball. Okay, which means that it's the distance from the center of the earth to the pole is actually shorter than the distance of the center of the earth to the equator. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने आर यूनिफॉर्म मान लिया कैपिटल आर अपनी कैलकुलेशन ऑफ जी में, वो इक्वेटर पे एक्चुअली थोड़ा बड़ा है और पोल पे थोड़ा कम है. राइट, सो लेट्स गो बैक एंड सी कि आर जो है, राइट, लुक एट दिस हियर, राइट, दिस इज द फोर्स, राइट, आर स्क्वायर कम्स इन द डिनोमिनेटर. Right, so if r is bigger, the force will be lesser and hence the acceleration will be lesser. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स जहां पे r की वैल्यू कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा. सो बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, पोल्स पे g की वैल्यू 9.8 से ज्यादा है और इक्वेटर पे थोड़ी कम है, एवरेज वैल्यू 9.8. ओके, और अगर हम अनयूजुअली हाई पॉइंट्स पे चले जाएं, जैसे कि टॉप ऑफ अ माउंटेन विच कुड बी 6-7 किलोमीटर्स अबव द surface of the earth, or while we are in a flight. Okay, at those heights also there is a small difference in the value of g. Okay, लेकिन ये सब हमारे केवल ये चीजें हमारी केवल काम आएंगी कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को आंसर करने में. जैसे कि क्वेश्चन डायरेक्टली ये आ सकता है कि वेयर इज जी मोर, at the pole or at the equator, then we should know that. Is it more at the top of a mountain or is it more on the surface of the earth, right, or on the sea level? So these kind of Sir, questions. please speak loudly. Okay, Yes, is sir. it better now? Is it better now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, good. ओके, तो मैंने अभी तक जो बताया है, अगर किसी को क्लियरली समझ नहीं आया है कि g एक कांस्टेंट हर जगह नहीं है, वो जो है पोल पर ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, क्योंकि पोल पे रेडियस ऑफ अर्थ कम होता है. उसी तरह से ज्यादा हाइट्स पे आप जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगी. लेकिन जब हम क्वेश्चंस कम हाइट्स पे सॉल्व करते हैं, जैसे 100 मीटर से एक बॉल ड्रॉप किया, तो उस बॉल के पूरे ड्यूरेशन में हम जी को कांस्टेंट मानेंगे हमेशा. ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. दिस इज मोर फॉर आवर थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो इन क्वेश्चंस जी इज अ कांस्टेंट. ओके, नाउ there can be sometimes a confusion between the capital G and a small g, right? Some people do confuse, I am sure you guys won't. ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चंस ही आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द कैपिटल जी एंड द स्मॉल जी. ओके, तो वो क्या डिफरेंसेस हैं? कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. The meaning of universal here is that this is a constant which will never change from anywhere to anywhere. On surface of earth, on moon, on sun, on a faraway galaxy, it is always the same. Okay. However, small g जो है ये acceleration due to gravity है. It is not just some constant of proportionality. Okay. कैपिटल जी के यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, जबकि g के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है. जो कैपिटल g है ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है. ठीक है, अगर कोई हमसे ये पूछे कि जी ये बताइए कि ये क्या होता है, वन कैपिटल जी क्या होता है, ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता. वन कैपिटल जी कुछ नहीं होता. जी इज जस्ट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है. ठीक है, लेकिन स्मॉल जी जो है उसका मीनिंग है, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्सेलरेशन व्हिच इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. इट इज एन एक्सेलरेशन. ओके, एंड कैपिटल जी इट्स
unit is invariant in the entire universe, but g की value approximately constant है, लेकिन it changes from place to place. Okay, these are the important points to remember. Okay. सर कैपिटल जी की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. हाँ, which is roughly 6.7 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square kilogram per kilogram to the power of minus 2. Okay, और per kilogram square. Okay, वो फिक्स्ड है. वो आप अगर एक फार अवे गैलेक्सी में भी जाएंगे तो भी वहां वही यूज होगी. ठीक है, उसका अर्थ से कोई मतलब नहीं है, सन से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है. स्मॉल जी इज ओनली ट्रू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, सो ये बिल्कुल अलग क्वांटिटीज हैं. मतलब कैपिटल जी और स्मॉल जी जो हैं सुनने में एक जैसे लगते हैं, राइट, और दोनों ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, बट दे आर वेरी डिफरेंट, दे हैव नथिंग इन कॉमन. ओके, तो जो ये टेबल आप देख रहे हैं इससे आपको दिखाई देता है कि उनका मीनिंग अलग है. एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, चाहे वो इजीली वेरी नहीं होता बट स्टिल इट इज अ वेरिएबल. उनके यूनिट्स अलग हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, एक नहीं करता है, राइट. सो दे आर जस्ट वेरी डिफरेंट थिंग्स, बट स्टिल समटाइम्स पीपल डू कंफ्यूज देम. ओके, now if there is a force of gravity that holds the moon to earth, right, this is what Newton said, right. He unified the fact that even moon is held to earth because of gravity. Then why does the moon simply does not fall on earth? If earth is pulling the moon with the force of gravity, so why does the moon does not come all the way and hit the earth, right, like a ball? Okay, but we know it doesn't happen, so there is nothing to think about, right. Obviously it doesn't happen. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इसके हम we have to think about some possible explanation, right. What is the explanation? एक हम चीज सोच सकते हैं कि क्या कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है जो इसको वहां पे होल्ड करती है. ऐसा भी कुछ नहीं है. We know that gravitational force is not repulsive, right. There are no charges to again cause repulsion. So why does the moon does not fall back, right? So it doesn't fall on Earth, Because moon has its own gravitational force. which doesn't make any difference, because that is also moon is pulling Earth and Earth is pulling moon, right. सर लेस मास वजह से. सॉरी सर उसका वजन कम है. हाँ, तो जैसे एक बॉल है, राइट. अब एक बॉल है Yes, sir. अर्थ के पास, राइट. तो वो बॉल अर्थ को पुल कर रही है और अर्थ बॉल को पुल कर रही है. फाइनल रिजल्ट तो यही होगा कि बॉल अर्थ पे गिरेगी. व्हाई? बिकॉज अर्थ विल नॉट एक्सेलरेट बिकॉज ऑफ द बॉल, बिकॉज अर्थ इज मैसिव. It will accelerate so less that nobody can measure it, right. It is the ball that will accelerate and fall on earth, right. So उसी तरीके से मून भी एक्सेलरेट हो रहा है अर्थ की तरफ. अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो वो अर्थ पे आके क्यों नहीं गिर जाता, राइट. तो वो उसका एक रीजन ये है क्योंकि अर्थ जो है, वो जो मून है, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. अगर वो रिवॉल्व नहीं कर रहा होता तो वो अर्थ पे आकर गिर गया होता, बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल. What keeps it with earth, that it doesn't leave the gravitational pull of earth and yet doesn't fall on earth, is this revolution of the moon around the earth. ठीक है, अब इस चीज को हम एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एक एनालॉजी से समझेंगे. एनालॉजी क्या है कि आप एक स्टोन लीजिए, उसको एक धागे से बांध लिया, स्ट्रिंग से बांध लिया. अब आप इसको तेजी से घुमाइए, राइट. यू डू इट विद यो-यो एंड सम अदर टॉय, राइट. तो वो हम ये देखते हैं कि वो उस
हम उसको अपने सर के ऊपर भी घुमा सकते हैं, it doesn't fall down, right? Anybody, you have tried such things, right? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Okay, so the reason is कि जो अगर फोर्स है तो वो कुछ एक्सेलरेशन कॉज करेगी, राइट? फोर्स इज इक्वल टू ma, तो फोर्स एक एक्सेलरेशन तो कॉज करेगी, राइट? अब अगर फोर्स एक एक्सेलरेशन कॉज कर रही है, फोर्स इज इक्वल टू ma, तो ये a कहाँ है, ये हमें सोचना है. एक्चुअली acceleration is change in velocity, rate of change of velocity, sorry, right? Yes, sir. अब ये बताइए कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे पॉसिबल होता है. एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी दो तरह से पॉसिबल होता है. एक तो सभी को पता है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, यानी स्पीड चेंज हो जाए. कोई चीज 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब वो 3 मीटर पर सेकंड पे आ जाए, तो उसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन हुआ है. अगर उसकी स्पीड ना चेंज हो, यानी वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अभी भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है एक्सेलरेशन हुआ हो? Yes, sir. कैसे? Sir, direction change हो रही है. Direction change. हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, या तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए. डायरेक्शन चेंज होती है. तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो मून की वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ला रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन चेंज करने में चला जाता है, रादर देन पुलिंग इट टुवर्ड्स द अर्थ. ओके, सो उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, केवल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. That's why it does not fall on earth. Okay, ये समझने के लिए हम सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं. ठीक है, सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है. ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन even when its speed is constant, even when the speed is constant, it has an acceleration because of change in direction, right? Okay, that we will see here, right? You can see that Yes, sir. B at point Yes, sir. B, this ball Sir, is going. Speak loudly. Acha, okay. So see at point B, this ball. Video बंद कर लीजिए अपना. हाँ, at this point the ball is going in this direction, okay, but here the ball is going in this direction, right? So it was going roughly upwards, and here it is roughly going towards the left, right? So ये direction continuously change हो रहा है. Yes, sir. और ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बेटा ये अपना वीडियो बंद कर लोगे? हाँ, तो अब जो है ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है और यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, सो व्हेन लेट्स गो बैक. ओके, दिस एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय अ फोर्स दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, this we will not prove in this class. Okay, this we will do in class 11, but there is a force that is acting towards the center of the circle. Okay, so ये देखिए, ये जो फोर्स है यहाँ पे हमने दिखाया है, ये जो धागा बंधा हुआ है ये फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ये घूमता रहे. ओके, और जब बात मून और अर्थ की होती है तो ये धागा नहीं होता, क्या होता है बीच में? ग्रेविटेशनल पुल. ओके, सो ये धागा और ग्रेविटेशनल पुल दोनों ही क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ है. ओके, और इस फोर्स का एक नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल मींस टुवर्ड्स. So a force which is towards the center of a circle is called centripetal force. Centripetal force. Okay. The centripetal Yes, sir. force is provided by Yes, the sir. gravitational force in case of Earth,
and move, and for that matter between any two celestial bodies exhibiting circular or near circular motion. ठीक है, तो जैसे अर्थ एंड सन को ले लीजिए, जुपिटर एंड सन को ले लीजिए, ठीक है, तो या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड अर्थ को ले लीजिए। अभी हमने मंगलयान भेजा अगर मंगल पे, तो वो भी मंगल के चारों तरफ घूम रहा है और इसीलिए वो मंगल पर नहीं गिर रहा है। ठीक है, अब ये घूमना किस स्पीड से घूमना चाहिए, कितनी दूरी पे घूमना चाहिए कि ना गिरे, ये सब कैलकुलेशंस भी हम क्लास 11th में करेंगे। ओके, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ करंट करिकुलम। ओके, सो वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द स्पीड ऑफ मून, स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड सन, those things. ओके, अब Yes. मैंने एक चीज और लिखी है, नियर सर्कुलर मोशन, राइट। ये केवल ये दर्शाने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पर कि बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो प्रॉपर सर्कुलर मोशन में नहीं होते, दे आर यूजुअली इन द elliptical path. Okay, so which is fine. जॉय गर्ग, आपको रिमोट एक्सेस चाहिए मेरी स्क्रीन पे, वाई वो बटन मत प्रेस कीजिए। ओके, so the force of attraction does not make the moon fall on earth, rather it keeps the moon in its orbit by providing the required centripetal force. Okay, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना, लेकिन आपको ये लिखना भी आना चाहिए। ओके, क्योंकि ये by itself can be a question. So the answer to this is that moon does not fall on earth, or for that matter any other object that we talk about which is revolving around each other. Okay, that the moon would not fall on earth because the force of gravity does not, or force of gravity is used to provide the centripetal force which keeps the moon in its orbit. Okay, even if you write that much and draw this diagram, okay, put a moon, put a earth, right, put a earth, put a moon and put an orbit around it and say this is the force and this is the centripetal force. Okay, even if you will show this, okay, you will get marks for that. Okay, और सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या वैल्यू होती है? You will not have numericals on that, but you should know centripetal force की, अगर एक object of mass m is going around in a circle of radius r with a velocity of v. V here means only the magnitude of velocity. Okay, in that case the centripetal force is equal to mv squared by r. ओके, तो ये आप याद रखिए, इस पे आपको न्यूमेरिकल शायद नहीं करने पड़े अगर, ठीक है। आई चेक कि अगर कभी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आया है, वैसे आई डोंट थिंक। ओके, आपने सर्कुलर मोशन का चैप्टर 10th में है क्या? सॉरी 9th में है क्या? नहीं है ना? आई थिंक इट इज, हाँ इट इज इन 10th, so that's okay. So ये अभी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बट याद रखिए। okay. Now there will be some questions you will be required to solve for objects near the Earth's surface. Means these are the questions where acceleration due to gravity is g. These are the questions they will use g. Okay. Now there is nothing great about these problems. These questions can be done from the kinematics chapter. Okay, kinematics chapter जिसमें आपने equations of motion पढ़ी. Okay, तो उसमें आपने ये 3 equation of motion पढ़ी थी. Yes sir. Yes sir. Okay, so उसमें आपको क्या करना है, बस g की a की जगह g लिख लीजिए, क्योंकि acceleration हमें अब पता है क्या है.
और उसकी वैल्यू यूजुअली क्वेश्चन में दी हुई होगी, अगर नहीं दी है तो 9.8 लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर दी हुई है जैसे 10 दी होती है कई बार फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, तो तब जो दी है वही। सर आपकी साउंड नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। और वो भी मेरी आवाज सर कम साउंड आ रही है पूरी। हाँ सर आ रही है। हाँ, क्योंकि मैं इससे तेज बेटा बोल नहीं पाऊंगा। ऐसा में तो आ रही है। आप अपना थोड़ा स्पीकर देखिए, ठीक है। सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो ये इक्वेशंस आपको याद रखने हैं। ओके, इनको आज ही याद कर लीजिए, याद रहने चाहिए अगर याद नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, केवल बात इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज ये कि आपका जो साइन है किसी भी चीज का, v का साइन, u का साइन, g का साइन, s का साइन, t हैज नो साइन बट अदर्स हैव साइन, राइट। हम यूजुअली केवल 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा ये वर्टिकल है, g की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने डिस्टेंस ऊपर ले लिया तो हमें पता है कि g तो नीचे है, तो वो माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज की वेलोसिटी हमने ऊपर की डायरेक्शन में ले ली फिर तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कोई भी एक कन्वेंशन चूज करना है, हम कोई भी एक कन्वेंशन चूज कर लेंगे और उसी के हिसाब से सब चीजों के साइन करेक्टली लिखेंगे। ओके, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आप नोटिस करिए कि हर एक इक्वेशन में 1, 2, 3, 4 वेरिएबल्स हैं। इसमें s, u, t, g, इसमें v, u, g, s, हर एक में केवल 4 ही वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जबकि टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, उनमें से केवल 4 वेरिएबल्स यूज होते हैं हर एक इक्वेशन। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, हमारे पास s है, हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास g है, हमारे पास t है। हमारे पास ये 5 वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन किसी भी एक इक्वेशन में केवल 4 ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 3 वैल्यूज चाहिए इन 5 में से। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या है कि आप SUVGT लिख लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ के समझकर जो वैल्यूज वहां दी हुई हैं उनको लिख लीजिए। मान लीजिए ये 10 मीटर है, ठीक है, विद यूनिट्स लिखिए। मान लीजिए U 0 है और V जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है, g तो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, राइट। t निकालना था हमें, तो t के नीचे लिख लीजिए क्वेश्चन में, राइट। तो सबसे पहले ये टैब्यूलेट करिए, फिर देखिए कि सब यूनिट्स जो हैं वो मैच होती हैं क्या। ये भी मीटर MKS में है, ये भी MKS में, ये भी MKS में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये किलोमीटर होता है तो फिर उसको भी मीटर में करना है। इसके बाद सबके साइन चेक कर लीजिए। मान लीजिए s ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, हमने उसको ले लिया प्लस। वेलोसिटी भी ऊपर की डायरेक्शन में दी हुई है, उसको प्लस ले लिया। ग्रेविटी हमेशा नीचे होती है, उसको माइनस ले लिया। जब आप ये कर लिया फिर उसके बाद इन फॉर्मूलाज में डाल लीजिए जो भी एप्रोप्रिएट फॉर्मूला है। हमारे पास s है, हमारे पास v है, हमारे पास g है, तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें SVG साथ में आते हैं और निकालना t है, तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें S, V, G और T एक साथ आते हैं, राइट। तो वी कैन सर पहले इक्वेशन से, हाँ सर पहले वाले से हो जाएगा। सही, सारे फॉर्मूला उस फर्स्ट चैप्टर की तरह है, बस इसमें एक ही जगह जी आ गया है।
हाँ बिल्कुल उसी तरह से है। मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, पहले आप SUVGT लिख लीजिए, फिर सबकी वैल्यूज विद यूनिट्स लिख लीजिए, कोई यूनिट का अगर डिफरेंस होगा आपको दिख जाएगा, फिर सबके जो साइंस है वो करेक्ट कर लीजिए, फिर देखिए कि कौन सी इक्वेशन यूज होगी, उसमें वैल्यू डाल लीजिए। कई बार एक इक्वेशन से वैल्यू नहीं आई तो आपको दो इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास u की वैल्यू भी अवेलेबल है, तो हम चाहें तो ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं सेकंड। और हमारे पास क्योंकि इसमें 4 वैल्यूज अवेलेबल हैं 3 की जगह, तो हम एक से ज्यादा इक्वेशन पॉसिबल है हमारे लिए, हम ये भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि VU और G एक साथ है, T की निकल आएगी, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? Yes, sir. यस सर, आसान था। ठीक है, अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं, मास वर्सेस वेट। ओके, तो मास क्या होता है? ठीक है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ओके, अब इनर्शिया क्या है वो समझाना बहुत मुश्किल है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ओके, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। उसको हम कैसे भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, बट इट इज व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स समथिंग दैट रिड्यूसेस द एक्सेलरेशन इज इनर्शिया, राइट? तो उसका मेजर जो है मास है, ये कांस्टेंट होता है एक बॉडी के लिए। इट डज नॉट चेंज वेयर यू टेक द बॉडी। ओके, एंड द यूनिट ऑफ दिस इज किलोग्राम इन NKS सिस्टम। ओके, नाउ वेट क्या है? वेट एक्चुअली, ऑल्दो डे टू डे लाइफ में हम वेट और मास को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, फिजिक्स में हम कभी नहीं कर सकते। वेट is a very different quantity, it is a force. Then what it is actually, it is mass into acceleration due to gravity, which is mg. So आप mass into g की value multiply करेंगे, you will get the weight. Let's assume g to be 10, then mass into 10, so 10 m is the weight of a body in newtons. Okay, but day to day life में it's very rare that somebody says that if I ask you what's your weight, you will not say my weight is 500 newtons, right? I have yet to meet a person who ever responded to the question like this, right? Have you ever told somebody your weight is 500 newtons? चंदन, आपने अपना वेट किस तरह बताते हैं किसी को? अगर मैं आपसे आपका वेट पूछूं? सर न्यूटन में कोई नहीं बताता। हाँ, तो किस यूनिट में बताते हैं आप अपना Sir, kg में। हाँ, तो आप केजी में बताते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि केजी तो यूनिट मास की है, राइट? यस सर। सो वो आप फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं, डे टू डे लाइफ में अभी भी वही बोलेंगे, लेकिन फिजिक्स में आप नहीं बोल सकते। तो अगर आपका मास 1 kg है तो आप अपना वेट क्या बोल सकते हो? 1 किलोग्राम फोर्स, kgf। ओके, सो kgf होता है वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास। तो कई बार हम kgf को भी एज अ यूनिट यूज करते हैं वेट के लिए एज वेल एज फॉर फोर्स। सो आई कैन से दैट आई अप्लाइड a force of 10 kilogram force on a body, which roughly means I applied 100 newtons. ये समझ आ गया आपको kgf का कॉन्सेप्ट? यस सर। Okay. Yes, sir. Okay, now let's do some very simple questions. We have about 5-6 minutes left. I think we can do these questions. Okay, will weight of an object be different on Earth and on the moon? Yes, sir. Yes, it will be. Okay, my weight is 78 kg. What would you say about this statement? सर रॉन्ग है ये।
हाँ, ये फिजिक्स के हिसाब से गलत स्टेटमेंट है, इसको सही सर हमें करिए। 78 न्यूटन बोलना होगा। अगर 78 न्यूटन होगा तो वो फिर कोई जो है ना बहुत छोटा बच्चा होगा, राइट? तो 78 kgf। 78 kgf, 78 न्यूटन तो आप ये समझ लीजिए 1 साल का बच्चा शायद बोलेगा अपने को, बिकॉज 78 न्यूटन मतलब रफली अराउंड 7.8 किलोग्राम फोर्स, राइट? तो उसका मास केवल 7.8 kg है, दैट इज अबाउट अ किड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो इसको करेक्ट करेंगे हम 78 किलोग्राम फोर्स। ओके, an object weighs less on moon compared to that on the earth because the value of capital G is lesser on moon compared to on earth. True, false? फॉल्स सर, फॉल्स है सर, स्मॉल जी होना चाहिए। हाँ, वहां पे स्मॉल जी होना चाहिए। वेरी गुड। इफ वन डे अर्थ if one day earth stops revolving around the sun, what would be the biggest consequence of such an event? तो अर्थ सन को जाके हिट कर देगी। अर्थ जो है वो सन में गिर जाएगी। We can say that it will fall into the sun, it will go and collide into the sun, कुछ भी बोल सकते हैं, right? Your answer is perfect, right? So वो biggest consequence है। A ball of steel has a mass of 6 kg on earth. What would be its mass on moon? सर 1 kg। ओके, एक बार फिर से सोच लीजिए। बिल्कुल, आपने एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगाया और आपको याद था, आई एम वेरी ग्लैड, कि मून पर चीजों का वेट अर्थ के मुकाबले 1/6 होता है, राइट? और वही ट्रिक करने के लिए मैंने आपको यहाँ 6 kg भी दिया, राइट? सो दीज आर ट्रैप क्वेश्चंस, ओके, ट्रिक क्वेश्चंस। तो लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये तो मास है, केजी है, किलोग्राम फोर्स तो है नहीं, ये तो मास है, और मास हर जगह सेम होता है। तो आंसर क्या है? हेलो, आंसर 6 kg। 6 kg. The mass on earth is 6 kg, so on moon also will be 6 kg, because we are asking about the mass, not weight. अगर ये क्वेश्चन अलग होता, अगर ये होता कि a ball of steel has a weight of 6 Newton on earth या 6 किलोग्राम फोर्स on earth, then हम मून पे बताते तो 1/6 कर देते उस फिगर। ठीक है? If Newton's third law is true, which it is, but if Newton's third law is true, then why does a ball not attract the earth with the same force as earth attracts the ball? Explain. सर मास की वजह से। हाँ, पूरा बताइए। ओके, देखिए ये स्टेटमेंट ही गलत है। जिस अर्थ बॉल को खींचती है, बॉल भी उसी फोर्स से अर्थ को खींचती है, बिकॉज न्यूटन। लेकिन सर हमें दिखाई नहीं देता है। हाँ, हमें फील नहीं होता क्योंकि एक्सेलरेशन बॉल का ज्यादा होता है और अर्थ का इतना कम होता है कि हम मेजर ही नहीं कर सकते। फील तो छोड़ो, हम मेजर भी नहीं कर सकते, राइट? ओके, अभी ये कभी भी सेशन बंद हो सकता है, बट वी विल ट्राई टू डू द लास्ट क्वेश्चन। देयर आर टू बॉडीज दैट अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, व्हाट वुड बी resulting gravitational pull between them? ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो डिनोमिनेटर में होता है लेकिन स्क्वायर में होता है। तो डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सो द आंसर विल बी 2.5 न्यूटन।
Any सर एक doubts on that? लेक्चर ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे लेना सर, वो थोड़ा कम समझ में आया है सर। Graphical representation of motion. यस यस सर। सर। Okay, I'll do Yes, that sir. next time. ठीक है, Yes, sir. हम वो कर Okay, लेंगे sir. और फिर आगे बढ़े। ठीक है, ओके सर। Yes, okay, sir. great. Okay, thank यस you. सर। Bye bye. थैंक यू Thank you, सर। sir. सर। Bye.